welcome to World of Food. मैं हूँ शामुली and wishing all you food lovers a very happy and safe दिवाली। हमारी कंट्री में दिवाली का कुछ अलग ही क्रेज है, चाहे हो वो दिवाली पूजन, दिवाली के पटाखे, इतने सारे गेट टुगेदर्स, फ्रेंड्स से मिलना, फैमिली से मिलना, और एक चीज जो बनाती है इस फेस्टिवल को और भी स्पेशल, वो है फूड। चाहे हो वो घर पे बनी हुई दिवाली की मिठाइयाँ या फिर कोई होटल में होस्ट किया गया एक दिवाली लंच। Truly, the presence of good food makes this festival even more complete. तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल राइड इनटू द वर्ल्ड ऑफ फूड। आज जिस रेस्टोरेंट को हम विजिट करेंगे वो उन रेयर जॉइंट्स में से है जो completely ओनर रन है। Besides that, ये देता है आपको एक म्यूजिकल एनवायरनमेंट टू एंजॉय योर फूड। पुणे में लोकेटेड है शीशा जैज कैफे, जो ना कि एक पॉपुलर ईट आउट जॉइंट है, लेकिन आपको देता है एक ट्रू टू इट्स कोर जैज कैफे भी। लेट्स चेक आउट दिस पॉपुलर वन ऑफ अ काइंड रेस्टोरेंट। माउंटेन रेस्टोरेंट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको ले जाता है नेचर के करीब, जहां आप सिर्फ खाने को ही नहीं बल्कि नेचर को भी बहुत क्लोजली एंजॉय कर सकते हैं। पुणे के कोरेगांव पार्क में लोकेटेड है एक ऐसा ही ग्रीन और ग्राउंडेड रूफटॉप इरानियन रेस्टोरेंट, शीशा जैज कैफे। Actually, my husband always have a dream to have the Iranian restaurant. How in Iran they settle down, how we are having moda with all the cushion, carpet. एम्बियंस से लेकर म्यूजिक तक, ग्रीनरी से लेकर टेस्ट तक, यहाँ की हर चीज सूट्स योर माइंड एंड योर हार्ट। My dad, being one of the partners, has this great love for greenery and his plants and nature. A majority of people usually say the ambience is what draws them, और the idea कि शीशा में बैठते तो ऐसा नहीं लगता है कि पुणे में बैठे या शहर में बैठे, you know, that kind of appeals to a lot of the people. You get away from reality for a short time while you're here. As the name suggests, ये कैफे होस्ट करता है कई jazz performances on a weekly basis. So if you enjoy jazz, nature and good food, then Shisha Jazz Cafe gives you just the perfect mix of all these elements. और यही नहीं, over the years ये रेस्टोरेंट बन गया है कई अपकमिंग बैंड्स के लिए एक बहुत ही renowned प्लेटफॉर्म भी। हर हफ्ते एक बैंड है पिछले 10 साल के लिए। You do the math, it's a lot of band. We try to stick with our theme, and the theme is jazz and blues. The thing is, over the last 10 years, it's also become a bit of a platform now. If you've performed at Shisha, it means something today. You know, there was a point where we'd go knocking on doors and saying, come and perform. Today they come knocking on our door and request us to let them perform. With all the jazz and blues and the Iranian feel to it, the food here is still an amazing intercontinental mix. यहाँ आपको मिलेगा Iranian और Persian taste के अलावा बहुत ही delicious और recommended Indian खाना भी। As much as the ambience is nice and as much as the music goes with the ambience and as much as it's green, if you don't like the food, you're not going to come back. You know, so it's the food that is what makes people come back, I've always felt. From the Middle Eastern and Iranian food, it's usually people love the cello kebab and the juje kebabs, berry rice. Amongst the Indian food, I know people who come halfway across the world, I'm not exaggerating, who come here just to eat the butter chicken and the cheese garlic naan. When it comes to menu revival, यहाँ पे हर चीज को fairly टेस्ट किया जाता है यहाँ के कस्टमर्स के टेस्ट से। Menu change करने के लिए we'll introduce a new item and we add it as a special, and based on how people react to it, only then is it changed. यहाँ के visitors में included है हर genre और हर age के लोग। In the morning there'll be the college crowd who class bunk करके आ रहे हैं. In the afternoon there'll be more of an office crowd. Evenings usually draw a lot of families come, a lot of birthdays happen here, a lot of corporate parties, a lot of expats, because it's
by far one of the few places that plays jazz. कॉमनर्स में पॉपुलर होने के साथ साथ ये जगह बहुत ही पॉपुलर है among some Bollywood celebs too. यहाँ के रेगुलर विजिटर्स में इंक्लूडेड हैं जैकी श्रॉफ, पूजा भट्ट, रानी मुखर्जी एंड मलिका शेरावत. The owners are here every day and we make sure that pretty much everyone walks away with a smile and feels happy. I've been coming here since I was 10 years old. I've been coming here from the very first moment I came to Pune. अभी recently पिछले 2-3 साल से तो आ रहा हूँ यहाँ पे. I come here very often, at least a week, once a week. For the last 7 years. करीब 10 साल से आ रहा हूँ. I've been coming here since the beginning. Food here is amazing. My favorite dish is Iranian platter. The tandoori chicken and the zereshk pulao. I like the paneer tikka. The butter chicken, it's really good. I love the beef steak. I also love the atmosphere and I'm really looking forward to the live music. I like the atmosphere. I think it's a beautiful place. I love the divans and the comfiness. If I had a dream house, it would be built like this. कैफे शीशा फेमस है अपने ईरानियन, कॉन्टिनेंटल, लेबनीज और नॉर्थ इंडियन फूड के लिए. इस जगह की यूएसपी है यहाँ का ग्रीन एंड म्यूजिकल फाइन डाइन एक्सपीरियंस. ओवरऑल हम इस रेस्टोरेंट को रेट करेंगे फूड के लिए 4 on 5, एम्बियंस के लिए 4.5 on 5 और सर्विस के लिए 4 on 5. Amidst all the city's chaos and noises, अगर आप चाहते हैं some time to relax in the embrace of nature, then this is the place for you. और यहाँ का perfectly blended menu और butter chicken तो है ही. This place is a hit for not only people in Pune but for its fans all over the world. जो एक बार यहाँ पे जाता है, he doesn't think twice before going again. तो आप ही check कीजिए इस weekend पे performing jazz bands की and make sure you do your bookings while I take a quick short break. वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ फूड. अगर अपने दिल की सुने तो क्या नहीं हासिल कर सकते हैं. Your aspirations can really take you places. हमारे अगले सेलिब्रिटी शेफ एक ऐसे फूड लवर हैं जिनका पैशन फॉर इंटरनेशनल फूड ले गया उन्हें मुंबई से इटली और फिर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, नॉट वंस बट 7 times. अगर आपको लग रहा है कि ये कोई ट्रैवलर है तो आप गलत नहीं हैं. ये है एक ट्रैवल लविंग इंटरनेशनल शेफ. आइए मिलते हैं विकी रत्नानी से. Vicky Ratnani is genuine, creative and passionate. So boys, as you know, this is our signature dish. Words of determination, right? और इन्हीं स्ट्रॉन्ग बातों के बिलीवर हैं हमारे आज के शेफ और फूड कॉनसियर विकी रत्नानी, who is simply driven by his passion and love for food. Eating 2-3 lunches, 2 dinners, eating in the neighbor's house, और स्कूल में भी मैं सबका टिफिन टेस्ट करता था. तो that the love, जो प्यार, जो passion towards food, खाने की तरफ, flavor की तरफ, was always there. I used to love going to hotels. मुझे होटल से ही प्यार हो गया था और उसके बाद decided to join catering college. उनके टीचर्स ने फूड को लेकर उनके इस पैशन को जज किया और इसे एक प्रोफेशनल टच देने के लिए इंसिस्ट किया. एंड henceforth everything in his life was about food. My teachers made me realize that आपने ये कभी करियर का सोचा है? मैंने बोला नहीं है. I am happy. मैं खाता हूँ, पीता हूँ, खिलाता हूँ. काफी सीरियस हो गया था. अगर आपको पैशन है किचन में, कुकिंग में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, फिर आप सर्वाइव करोगे क्योंकि यहाँ पे टाइम कभी नहीं पास होगा इफ यू डोंट लाइक इट. विकी उन रेयर शेफ्स में से हैं जिन्होंने सर्व किया है रॉयल्टी को while he was working as the primary chef with Cunard for 7 years. काफी कुछ सीखा about international food. वहाँ पे about 36 different nationalities, उनके साथ आपको काम करना पड़ा. वो जो mind development, working under pressure, long hours, lot of work, बहुत काम था, but मजा इतना आता था because you know young, energetic. It was like chasing the dream. But as they say, no journey is complete without the jolt of ups and downs. विकी की इस मजेदार वोयाज में उन्हें मिली कुछ sweet and sour memories. Actually एक बार हुआ था कि काफी डांट पड़ी मुझे. मेरा जॉब था like twice a week, बड़ा फ्रिज साफ करने का, अरेंज करने का, फिश, लॉबस्टर, ये वो सब कुछ था. क्लीनिंग के बाद, सेटिंग के बाद मैंने फ्रिज वापस चालू नहीं किया. शिफ्ट खत्म हो गई थी, किचन वॉज क्लोज्ड. Next morning,
5 बजे मुझे कॉल आया, 10 या 15,000 डॉलर वर्थ ऑफ सी फूड हैड टू बी गॉट थ्रोन अवे। नेल्सन मंडेला हमारे शिप पे आए थे, जहाँ वो ठहरे थे कैबिन में, किसी को नहीं मालूम था, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था। 4 दिन के बाद ही रिक्वेस्टेड द कैप्टन that he would like to meet the chef or the cook who has made his meals, or it was me. So I got a nice hug and a blessing from Nelson Mandela, and it was one of the most touching moments. Oris और नीडो को अपना यूरोपियन ट्विस्ट देने के बाद how does he look at his future? Future plans, अभी Vicky Goes Veg मेरा बुक आ रहा है। It's a fabulous vegetarian cookbook which should come out in November. It's going to be available everywhere. तो मुझे actually 2-3 बुक्स लिखने हैं, 1-2 ऑर्गेनिक ईटरीज का प्लान है। I like to do more things on television, and I want to do a small cooking school. Chef Vicky Ratnani currently in charge है Mumbai-based fine dine restaurants Oris और नीडो के। Some experiences are too close to the heart. क्रूज पर एक्वायर की गई अलग अलग कल्चर्स की नॉलेज, या फिर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ फूड शो होस्ट, या फिर टीडियस बेसिक ट्रेनिंग्स। विकी हैज ऑल दीज फेदर्स इन हिज कैप जस्ट राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे फूड जॉइंट की तरफ जिसका सोल पर्पस था अपने नेटिव फूड को सबके लिए अवेलेबल करवाना। मैं बात कर रही हूँ कोलकाता बेस्ड रेस्टोरेंट क्यूपीज की। This is a nice place. सबसे अच्छा है कि लगता है कि घर का सब कुछ घर का बना हुआ। Food from Calcutta. कोलकाता इंडिया का एक ऐसा हिस्सा जो फेमस है अपनी स्वीट बोली और उससे भी स्वीट लोगों के लिए। लेकिन अगर विक्टोरिया मेमोरियल और मार्बल पैलेस देखने के बाद आपको खाना हो ऑथेंटिक बंगाली खाना, तो हियर इज जस्ट द राइट प्लेस फॉर यू। क्यूपीज। ईयर 1998 में शुरू हुआ ये ट्रू टू इट्स कोर बंगाली फूड जॉइंट फेमस है अपनी डिलिशियस बंगाली प्रेपरेशंस के लिए। QP started in 1998 in the memory of my mother Meenakshi Dasgupta, who was called QPs. QPs एक बढ़िया डॉल थी अमेरिका में 1950s. It had round cheeks, curly hair, and it was very beautiful. My father, my elder sister Pia, and me decided to open a restaurant. क्यूपीज का फाउंडिंग स्टोन रखा गया मिसेस मीनाक्षी दास गुप्ता के पैशन की वजह से। उनकी लिखी हुई रेसिपीज को बनाकर अपने घर के गैराज में ही राखी दास गुप्ता ने शुरू किया ये छोटा लेकिन ऑथेंटिक फूड जॉइंट, जो आज ट्रांसफॉर्म हो गया है इनटू वन ऑफ कोलकाता's मोस्ट विजिटेड लैंडमार्क। We started very small. The reason why we started this restaurant, and it was on a whim, really, because we couldn't find any place in Kolkata to eat Bengali food. And our USP was food cooked at home. We started in our garage with just 4 seats. And of course everybody said, oh, this will never work. But it has, and we have been working at it for 16 years. क्यूपीज को बहुत ही थॉटफुली शेप किया गया है दास गुप्ता फैमिली के अपने ही घर में। ये एक आइसोलेटेड सी लेन में लोकेटेड एक विंटेज मैंशन है, जहाँ की सराउंडिंग्स का मैजिक ऐड करता है आपके ईटिंग एक्सपीरियंस को और बनाता है इसे मेमोरेबल। So when we started QPs, सामने कोई होर्डिंग नहीं था। होर्डिंग किधर है, नेम प्लेट किधर है, छोटा गली में है, आदमी लोग पूछता था, घूमता था, किधर मिलेगा ये QPs। तो that also added to the magic of the place. We serve on mud plates or terracotta plates, bowls, etc. with banana leaf. Although यहाँ का à la carte मेन्यू रिवाइव किया जाता है on a daily basis, but यहाँ की स्टैंडर्ड थालीज या बंगाली में कहे तो थालास की वैरायटी आपको मेन्यू में हमेशा मिलेगी। There's a fish thala, meat thala,
और बाकी सब एक ही है, जो ऐसे साधारण थाला है। फिर भी एक चॉइस है वेजिटेरियन आइटम का, हो सकता है धोखा, आलू झींगे पोस्तो जो तोरी आलू से बना हुआ है, मोचा बनाना फ्लावर, गोभी का तरकारी हो सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम रश आवर्स होते हैं अराउंड दुर्गा पूजा, क्योंकि दुर्गा पूजा की फेस्टिविटी को क्यूपीज में भी सेलिब्रेट किया जाता है एक अलग होलसम अंदाज में। एक प्रॉपर बंगाली कोर्स मील खाने के लिए कोलकाता में अब सबसे सॉट आफ्टर जगह है क्यूपीज, जहां आपको ऑथेंटिक खाना सर्व किया जाएगा ऑथेंटिक तरीके से। बंगाली फूड इज स्लो फूड। इन आवर कल्चर वी विल नेवर मिक्स normally vegetarian with non-vegetarian. So to eat a Bengali meal will take at least half an hour. जब से ये शुरू हुआ 1998 से ही आ रहे हैं। I have been coming here for I think more than 15-16 years. I like to eat magur and catfish. बढ़िया से बढ़िया खाना, बहुत स्पेशल जगह है। My favorite dish is the fish here. I love the भेटकी and the हिलसा। मैं जब भी कलकत्ता आता हूँ तो लंच यहीं करता हूँ। हम लोग यहाँ पर इलाहाबाद से आए हैं कोलकाता में, तो यहाँ पर हम लोग कहीं से पता चला कि इस रेस्टोरेंट में फ़िश की काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ मिलती हैं, तो हम लोग यहाँ पे आए। टेस्ट के हिसाब से तो अच्छा है यहाँ। क्यूपीज एक बंगाली रेस्टोरेंट है जो लोकेटेड है एल्गिन लेन कोलकाता में। इनकी टाइमिंग्स है 12:30 PM to 3 PM, 7:30 PM to 10:30 PM। इन टोटलिटी इस फूड जॉइंट को हम रेट करेंगे फूड के लिए 3.5 on 5, एम्बियंस के लिए 3 on 5 और सर्विस के लिए 3.5 on 5। यहाँ की थालास की वैरायटी सुनकर आई एम श्योर हर बंगाली फूड लवर का मन करेगा टू कम्प्लीटली इंडल्ज विद ऑल हिज हार्ट, एंड आई हैपन टू बी अ बंगाली फूड लवर। अगर आप भी इनके स्पेशल दिवाली मेन्यू का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू बुक इन एडवांस, बिकॉज ये है एक स्मॉल एंड कोजी प्लेस विद लिमिटेड सीटिंग्स एंड वीकेंड्स पर ये जगह अक्सर होती है सोल्ड आउट। सो व्हाइल आई प्लान माय इंडल्जेंस, यू टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ फूड। वैसे आज हम अपनी कंट्री में इतना मैसिव फेस्टिवल तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको ले जाना चाहती हूँ एक और फेस्टिवल में। पिछले महीने यानी कि अक्टूबर में हुआ महाराष्ट्रन फूड का 3-day लॉन्ग मैराथन इन द सिटी ऑफ मुंबई। महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अपने ट्रेडिशनल फूड को शोकेस किया। सो व्हाई वेट, लेट्स हैव अ लुक एट अक्टूबर फूड फेस्ट। I like the food very much. The city of life and happenings, मुंबई। इस अक्टूबर मुंबई ने देखे महाराष्ट्रन क्विजीन्स के अलग अलग रंग और ढंग इन द अक्टूबर फूड फेस्ट। 8,000 से भी ज्यादा लोगों के पार्टिसिपेशन से बना ये इवेंट था सकाल पुलिस डाइट प्रोग्राम का एक हिस्सा। पुलिसमैन के वेलफेयर के लिए कंडक्ट किए गए इस प्रोग्राम को बड़े ही ग्रैंड और मजेदार तरीके से एंड किया गया इस 3 दिन के फूड फेस्टिवल के साथ, जहाँ पे थी महाराष्ट्र के हर कोने की फूड वैरायटी। 3 दिन का इवेंट रखा है हमने। मुंबई में पहली बार है और अगले साल से हर साल होगा। पूना से स्टॉल है, नागपुर साउजी, कोल्हापुरी मटन। सबसे ज्यादा पॉपुलर रही यहाँ की नॉन वेज डेलिकेसीज, जिन्हें हर उम्र और हर तबके के लोगों ने खूब एंजॉय किया। सबके मुंह पर बस एक ही नाम था, मटन साउजी ट्राई किया है। पहले तो मुंह पे इतना तीखा नहीं लगता है, पर जब आप खाते हैं तो आपको लगता है कि आपके आसपास सब जल रहा है, पर फिर भी आप खाना बंद नहीं करते हैं। फेमस हमारा साउजी है, वो ट्राई किया है। वी आर हैविंग कीमा कलेजी, बहुत बढ़िया टेस्ट है। ये जो कीमा है नागपुरियन साउजी का, वो बहुत टेस्ट है। हर दिन बढ़ती हुई भीड़ से पता चल रहा था कि मुंबई को ये फेस्टिवल और यहाँ पे शोकेस की गई महाराष्ट्रियन प्रेपरेशंस कितनी पसंद आ रही हैं। कोल्हापुरी सोलकड़ी, कोल्हापुरी मटन ट्राई किया है, तांबड़ा पांढरा रस्सा बहुत ही अच्छा है।
पान बहुत ही अच्छा है और बहुत मीठा है। औरंगाबाद का पान खाया, बहुत स्वादिष्ट पान है। कचौरी बहुत बढ़िया है। कचौरी इज वेरी टेस्टी। दिस इज वेरी गुड कचौरी, इट्स वेरी स्पाइसी। मटन साबूती, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। जहां कोल्हापुर, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद के स्टॉल्स थे, वहीं आमची मुंबई के स्टॉल्स में भी कोई कमी नहीं दिखी। यहाँ की फेमस सतगुरु पाव भाजी हो या सी फूड स्टॉल्स, मुंबई ने भी दिखाया अपना पूरा पार्टिसिपेशन। 4 आउटलेट हमारे चेंबूर में पाव भाजी रिप्रेजेंट करने हैं अपनी सतगुरु की तरफ से। सतगुरु के पाव भाजी बहुत अच्छी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, जिसको भी खाने का है वो खा सकते हैं। जितना भी फिश का आइटम रहता है वो भी होली स्पेशल, मतलब मसाला, घर का जो मसाला है उसी में हम लोग बनाते हैं। खा के जाता है और आके बोलता है तुम्हारा टेस्ट अच्छा है और तुम भी अच्छा है। पहले ही साल मिली वार्मथ और सपोर्ट से इस फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स ने बना दिया है इसे एक एनुअल इवेंट, जो महाराष्ट्रियन खाने का असली जायका आप तक पहुंचाएगा हर साल। अक्टूबर फूड फेस्ट कंडक्ट किया गया है अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुंबई में फ्रॉम 18 अक्टूबर 2013 to 20 अक्टूबर 2013। मैं आपसे अक्सर कहती हूँ ना कि हमारी कंट्री में फूड कोई सेलिब्रेशन से कम नहीं। अब तो आप समझ ही गए होंगे क्यों। नो कॉमन ग्राउंड, फिर भी 8000 से ज्यादा लोग लगातार 3 दिन तक साथ आए, सिर्फ फॉर द लव ऑफ फूड। तो है ना खाने का क्रेज दिवाली के क्रेज से भी ज्यादा। फिलहाल ये फूड जॉइंट्स, फूड हैपनिंग्स और शेफ टॉक्स के बाद वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का। आज है दिवाली, तो आप इस ऑस्पिशियस ओकेजन को एंजॉय कीजिए, इसके हर एस्पेक्ट का मजा उठाइए, स्पेशली फूड। You can write in to us with your feedback at wof@znetwork.com or you could even log on to our Facebook page. हम हाजिर होंगे with some more food stories next week on World of Food. This is Shamali saying goodbye and wishing you a very happy Diwali. The USP एक चीज़ नहीं है, is the ambience, the music, the fact that the owners are here every day and we make sure that pretty much everyone walks away with a smile. Don't stay hungry. It's not good for you. Bengali food was not served in any place in Kolkata. Very few. 8000 से ज्यादा लोग हैं। I like the food very much.